یہ بزرگ بڑی عمر کا آدمی بوڑھا آدمی کیا یہ چاہتا ہے کہ میں مطلب وہ میں جوان ہو جاؤں؟ جبھی تو بیوٹی پارلر جاتے ہیں نا. نہیں باپو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں باپو کا تو شوق ہے بیوٹی پارلر جانے کا. نہیں ہے شوق ایسے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل خواہش ہوتی ہے انسان کی. ہوتی ہے جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ خواہش تو ہوتا ہے خواہش ہوتا ہے جی جوانی واپس آوے. چلیں سلیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. نہیں ایسے ہی میں مطلب جنرل یہ بات کہ کر رہا ہوں. نہیں مطلب یہ اللہ کا شکر ہے کہ بوڑھا آدمی جوان ہونے کی خواہش رکھتا ہے؟ نہیں میرے کو خواہش نہیں ہے. آپ کو خواہش نہیں ہے. انیب بھائی؟ نہیں میری ذاتی رائے میں تو نہیں ہونا چاہیے. بس قلب مطمئن نہ ہو, اگلی منزل کی تیاری کرے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, بس یہ ہوتا ہے. آخرت کی سوچ. آپ کیا فرماتے بے ہیں؟ شک یہ ہے کہ اب بڑھاپا آ گیا تو اس کو بڑھاپے کی حیثیت سے گزارنا چاہیے. دوبارہ جوانی آنے کی تمنا کرنا, اگر اس سوچ سے کہ مجھے دوبارہ جوانی ملے, میں دوبارہ نیکیاں کروں, عبادت کروں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. پھر آنی چاہیے جوانی. صحیح فرمایا بالکل کہ اب ہر آدمی کی یہی خواہش ہوگی کہ میں جوان ہو جاؤں. جوانی تو پھر تو دوبارہ تو نہیں آ سکتی چاہے کتنی بھی کوشش کرے. ہاں اگر وہی کہہ رہے کہ یا اللہ تو مجھے اتنی قوت دے کہ میں تیری صحیح طریقے سے تیری عبادت کر سکوں اور تجھے میں ہر وقت خوش کر سکوں تاکہ تو مجھ سے راضی بھی ہو جا. یا اللہ میری یہ چیز. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں بھی ان کے جواب سے اتفاق کرتا ہوں. جس طرح حاجی صاحب نے بولا کہ بھائی دوبارہ اگر اللہ تعالیٰ جوانی دے اور اس نیت سے انسان میں ہو کہ بھائی نماز وغیرہ پڑھے یا عبادت کر سکے, اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. اور اگر اسی طرح جس طرح جوانی گزار دی اس سے نہیں ہو سکتا. تو یہ میں اصل میں یہ آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی آپ تو خیر ماحول کہہ رہا, تو آپ کہہ رہے جناب اگر اسی تمنا ہو تو عبادت کرے, تو عام آدمی جو ماحول میں ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ میرے کو جوانی پھر ملے تو میں سجدے کروں, رکوع کروں. واہ. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا بڑھاپا آتا ہے تو آدمی کو یہ اٹھتی ہے تمنا کہ کاش کے جوانی, حالانکہ میں سوچ سے یہ عرض کروں گا کیا جوانی پھر ایک چیز آ ہی نہیں سکتی, اس کی تمنا کیسا؟ حاجی صدیق کی تو رائے لے لو پہلے. یہ بھی تو لائن میں مائک لگا ہوا ہے. ان کا تعارف بھی نہیں ہوا, سب سے جانتے بھی نہ. اللہ اکبر. سب جانتے اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جانتے, تعارف کرا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر چھپائیں دیو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ تو بڑھاپے کی بات کر رہے ہیں, میں یہاں آیا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں نے بچپن گزارا ہے امیر اہل سنت کی سبحان اللہ. صحبت میں, اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ہم ٹکڑی گراؤنڈ میں شام کے وقت جایا کرتے تھے. جب عصر کی اذان ہوتی تو امیر سنت فرماتے کہ چلو بھئی بادامی مسجد میں عصر کی نماز ادا کریں گے. سبحان اللہ. گاؤں گلی میں رہتے تھے, پڑوسی ہم تھے, تو پھر ہم کھارادر چلے گئے. اور اس وقت میں بیعت ہوا تھا, امیر اہل سنت جانتے ہیں میرے شیخ طریقت کو, کانپور والے بابا حاجی عبد الرحمن شاہ صاحب, میں ان سے بیعت تھا. ماشاءاللہ. پھر حضرت نے اجازت دی کہ آپ طالب ہو سکتے ہیں. اب میں روزانہ جب مدنی چینل تو میں تقریباً جب بھی میرا موقع ملتا ہے میں طالب ہو جاتا ہوں. اب میرے شیخ طریقت کے دعاؤں سے الحمدللہ میری عمر 66 سال ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. 66 انگریزی حساب سے, انگریزی کے حساب سے 67 تک 68 60 اسلامی تاریخ کے حساب سے. اسلامی تاریخ رمضان کی 17 تاریخ کو میری پیدائش ہوئی ہے. یوم بدر.
यौम मेरी पैदाइश रमज़ान की अब यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। 17 तारीख को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें इन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। उम्र तो गुजर जानी है, वापस से कोई जवानी की तरफ लौट के नहीं आना है, लेकिन अल्लाह पाक इस उम्र में भी सेहत और आफियत के साथ ईमान के साथ रखे आमीन। और ऐसे बुजुर्गों की सोहबतों में हम रहें। बेशक। तो ये हम जवान ही हैं अभी तक, बेशक। हम बूढ़े नहीं हुए अभी। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अमीर अहले सुन्नत हैं ना, मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप बताएं कि मुसलसल खिदमत में लगे हुए हैं ना। अब ये इरशाद फरमाए कि एक बड़ी उम्र का शख्स, बुजुर्ग शख्स, बेटा एक बुजुर्ग शख्स जो है, बड़ी उम्र हो जाती, ये अपनी एक बड़ी एज तक जाकर भी 70, 75, 80 तक भी एक्टिव रह सके किसी हद तक, अगरचे वो कुछ ना कुछ अवारिस या कुछ ना मामला तो होंगे, किसी हद तक एक्टिव रह सके। अब देखने वाले आपको ऐसे कई 70-80 साल के या 60 साल के लोग होंगे इस शायद मदनी चैनल पर, जो शायद ये सोचते होंगे कि यार अपने एक्टिव रह सकें। तो ये एक्टिव कैसे रह सकें, घर में एक्टिव कैसे रह सकें या दीगर मसरूफियत में। बाद वक्त मैं थोड़ा सा सवाल को यूँ मैं लेता हूँ कि जब ये कामकाज नहीं कर सकते ना, तो ये बच्चों पर बहुत डिपेंड कर जाते हैं, और जितना ये बच्चों पर डिपेंड करते चले जाते हैं तो बाद नाफरमान बच्चे होते हैं कि फिर वो वालिदैन को इस वजह से कि कमाते तो हम हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं है। तो ये चंद चीज़ों का अगर आप कोई ऐसा जवाब इरशाद फरमा दें ताकि हमारे लिए भी और इस पर देखने वाले लाखों करोड़ों हो सकता है कि हों देखने वाले, इनके लिए भी कुछ सीखने समझने का मौका मिले। माशाअल्लाह। अब जो बेचारे उम्र गुजार चुके और मसाइल से दो चार हैं, अब इनका हल तो थोड़ा दुश्वार है। अलबत्ता अगर बुढ़ापा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ गुजारना हो तो जवानी से बंदा परहेज करे, खासकर मैदा, चिकनाट और मिठास ये मतलब कम लिया करे। ऐसा नहीं कि मतलब शुगर लो कर बैठे, इतना ना ले जितना मतलब आमतौर पे लेते हैं, फिर वजन बढ़ जाता है और ब्लड शुगर तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका हाई हो जाता है और कुछ भी कई अमराज उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जवानी में यानी कि मुनासिब अंदाज में खाए, अच्छी तरह चबा के खाए और सादा ग़िज़ा खाए। इसी तरह वर्जिश, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करता रहे इंसान, और पैदल चले और अपने हाथ से काम करे। अपने हाथ से काम करने से आज़ा को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मिलती रहती है। अब जिनकी उम्र बड़ी हो गई वो भी अगर इस तरह कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव रखना चाहें तो ये घसीट के इधर रखा, ये उठाकर उधर रखा, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ, जैसे घर में तकलीफ ना हो किसी को, इस तरह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहें, घर का काम काज करते रहें, सुदा सलफ लाते रहें। इंशाल्लाह इस तरह भी मतलब है कि वो पट्टे वगैरह खुलते रहेंगे और बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बापा हम अपने गुजरे वक्त की, हम बुजुर्ग लोग गुजरे वक्त की कदर कैसे करें, कैसे हो कदर? वो तो अब क्या कदर, तो वो जो गुजार दिया उसकी कदर क्या होगी, उस पर तो अफसोस ही होना, हसरत होनी है। एक कुछ नौजवान बैठे थे तो एक बुजुर्ग बूढ़े शख्स इनके करीब बैठकर कुछ तलाश करने लगे, तो इधर उधर ढूंढने लगे। तो नौजवानों में से किसी ने कहा कि बाबा जी क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा वो जवानी तलाश कर रहा था। कहाँ गई? तो वो हंसने लगे, बड़े मियाँ को जवानी भी इस तरह मिलती है ढूंढने से। तो फिर उन बुजुर्गों ने फरमाया कि मैं भी यही कहता हूँ कि वाकई जवानी मिलती नहीं है और मैंने गफलत में इसको जाया कर दिया, आप लोग जाया मत करना। इस तरह उसको नेकी की दावत दी उस बुजुर्ग ने। ये एक वाकया शायद किसी ने वो समझाने के लिए बनाया है। तो वाकई जवानी जो है ना, ये इसकी कदर जवान अगर कर लेना तो दुनिया और आखिरत के समर जाए। लेकिन अब बोलते हैं जवानी दीवानी, यूं मतलब जवानी में तरकीब जो है ना वो आउट अक्सर रहती है। हजरत अबू तय्यब तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने
100 साल से ज्यादा उम्र पाई, सुभान अल्लाह। लेकिन आखिरी दम तक जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना रहे। हाँ सुभान अल्लाह। किसी ने इस कदर बुढ़ापे में सेहतमंद रहने का राज पूछा तो फरमाया मैंने जवानी में अपने आज़ा ऑर्गन्स को गुनाहों से बचा कर रखा। सुभान इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में इन्हें सलामत रखा है। सुभान अल्लाह। नाफरमानी जो है इससे भी गुनाहों से भी मतलब जिस्मानी मसाइल भी होते रहते हैं। मुर्शिदी, इसी हवाले से एक सवाल है। सबसे पहले मुफ्ती आजम हिंद सैयदना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। सुभान अल्लाह। तो बाबा अर्ज़ ये थी कि जवानी में जो इबादत ना कर सके, अब बुढ़ापे में उसको किस तरह से उसको हासिल करें कि वो इबादत कर सकें, रियाजत कर सकें, नमाजें उस तरह से पढ़ सकें, उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए? आपको मदनी फूल चाहिए हज़रत। ये कि जवानी में जिसने नहीं की इसका मतलब बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है। अगर गुनाह किए तो अन्नदम व तौबतुन, शर्मिंदगी तौबा है, हदीस से भागना, सच्ची तौबा करे, नमाजें जो रह गई हैं इनकी कज़ा करता रहे, रोजे रह गए उनके कज़ा करे, और इस तरह मतलब ये कि जिक्र अस्कार करता बनेगा ना, उफले मदीना लग जाए ना, जबान अगर कंट्रोल में आ जाए, गैर जरूरी बातों से हम बचने वाले बन जाएं, तो फिर ये कि वो जिक्र अस्कार दुरूद व सलाम होता रहे। अब ये तस्बीह आप रख लिया करें, मैंने मौका देकर रख ही ली ना कि जो 2-4 दुरूद पढ़ लिए, आप अपने काम में लगे, मैं अपने काम में लग जाऊं, ये तरगीब के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो इस तरह मतलब है कि कोशिश करे ना बंदा तो अपना वक्त अच्छा गुजार सकता है। तो एक बुजुर्ग बुढ़ापे में इन्होंने इबादत बहुत बढ़ा दी थी। किसी ने कहा हुजूर अब तो आराम का टाइम है, बोला जब मंजिल करीब आती है ना तो सवारी तेज कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। अब मंजिल करीब आ गई, हमारा बुढ़ापा है, लेकिन हमारा बुढ़ापा अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है जिसको अर्जल उम्र कहते हैं, निकम्मी उम्र, जिससे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे। आदमी बिस्तर पर पड़ा है, बिल्कुल मोहताजी की जिंदगी है और दिमाग भी काम नहीं करता, बाज़ औक़ात मेमोरी भी फेल हो जाती है, इंशाल्लाह ना करे अल्लाह ताला, या लूज टॉकिंग करता रहता है, किसी काम का नहीं रहता। बुढ़ापा आखिर ऐसा भी आता है, तो हम उनमें से नहीं है, ये अल्लाह का करम है। अभी चलते फिरते और माशाअल्लाह बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं अल्लाह की रहमत से। तो इसमें अब भी जो कुछ कर सके काश हम करने वाले बन जाए। वो अगर उम्र आ गई और मौत नहीं आई, उसमें कुछ नहीं हो सकेगा। अच्छा, इस आयत ये कुरान करीम में ही इस उम्र का तस्करा, तो इसकी तफसीर में मैंने पढ़ा था कि जो कुरान करीम पर को मुस्तकिल तिलावत करेगा ना, कुरान करीम पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसको इस उम्र से बचाएगा। इस कैफियत से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। उलमा के बारे में भी आलिम भी सठियाता नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जबान और बहुत सारी चीजें, ख्वाहिशात, और मतलब ऐसा होता है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सारे आज़ा कमजोर हो जाते हैं, बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, ताकतवर हो जाती है जबान और हवस जैसे काम की, माल की, और वो इसकी इसका क्या इलाज किया जाए? और ख्वाहिशात भी बढ़ती है। ख्वाहिशात, बिल्कुल ख्वाहिशात बाबा, ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। देखिए सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बूढ़े आदमी को देखा कि वो अपनी जमीन पर कुदाल वगैरह चला रहा था, हल चला रहा था, काम कर रहा था। तो आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह इससे उम्मीद वापस ले ले। वो नबी थे अल्लाह के, उसने वो कुदाल रख दिया, वो लेट गया। फिर अर्ज किया या अल्लाह इसकी उम्मीद लौटा दे। फिर वो खड़ा हुआ, फिर उठाया, फिर चलाना शुरू कर दिया। तो आपने पूछा कि ये उसको तो नहीं पता था, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ये क्या तुम अचानक वो लेट गए और फिर ये खड़े हो गए? तो बोला मेरे दिल में आया कि मैं इस उम्र में कहाँ मतलब क्या करूंगा ये कर करके, तो मैंने रख दिया गया, आराम करो। फिर मेरे दिल में आया नहीं नहीं, उम्मीद तो दुनिया कायम है, ये उम्मीद है, नहीं नहीं मुझे जीना है अभी। तो यूं मतलब मैं फिर एक्टिव हो गया। तो बूढ़ों को वैसे ख्वाहिशात बढ़ती हैं, बाज़ औक़ात ये
है मतलब। अच्छा वो ख्वाहिशात तो होंगी, ये खा लूं वो खा लूं ये खा डालूं, हजम नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि मैंने ऐसे मरीजों का मुझे तो पता है ना, जरा वास्ता बहुत से पड़ता है, अब्बू को पाए खाने, अच्छा अब्बू फालेज, हार्ट अटैक, और बिल्कुल यानी कि खाना हजम भी नहीं हो रहा, कच्चा कच्चा निकल रहा है, लेकिन पाए खाने हैं, पाए खाने, बिरयानी खानी है, इस तरह के भी हैं मतलब केस। सही बात। कैसे खिलाए इनको पाए? तो भाई इस उम्र में बच्चा तो कोशिश करेगा ना कि बाकी ख्वाहिश पूरी करो। ये है कि ख्वाहिशात तो होती हैं लेकिन पूरी नहीं कर सकता। इसका क्या हाल हो कि तो बच्चा क्या करे अगर ऐसी क्या उम्र करे, में ये अगर हम बालिग क्या का- करें? अच्छा दुश्मनी हो तो पाए खिला देना चाहिए, जल्दी चले जाएंगे अब्बू जो है। अरे कि वो बच्चा ने बूढ़ा ही की होता है, तो बच्चा भी तो उल्टी सीधी चीजें खाने की करता, तो माँ बाप रोकते ही है ना। अब हमारी बारी, अब इनको रोके, इनको नुकसान दे काम ना करने दे, ये नाफरमानी थोड़ी है, बल्कि ये हमदर्दी है इनकी, तो जरूरी है। अभी मेरा पाया खाने का शौक था, अभी ये सुनेगा तो मेरा बच्चा पाया खाने नहीं देगा बाबा। क्या करेंगे ये बापा बताए? तो हर जगह फंसा हुआ है। नहीं, आपको पाया खाने का शौक तो था, बाहर जाकर बाहर नहीं अगर नहीं आपको औलाद पाया नहीं खाने का खिलाती शौक तो था। सही करती है। अमीले सुन्नत ने जो फरमाया, बच्चा तो नहीं, बच्चा चलो खिलाएगा नहीं, यानी बच्चा पापा की बात मान लेगा। हाँ, अपने को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। मानना चाहिए। तो अब यूं खाने दो यार, हाँ, है भी सेहत तो अच्छी है। अरे अल्लाह ऐसे बाबा जान बाबा घर पे टिक्की पकता है, मीठे पकता है, नमकीन पकता है, खट्टा मीठे भी पकता है, लेकिन आपने क्या पसंद है वो बताइए, और मेरे को क्या खाना है वो बताइए। खिचड़ी खानी, खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो नमकीन में आ गया ना। ये घर डर डर के खाए। दलिया माजिद खानी है, बापू ईंडा है, माजिद बापू ईंडा है, नहीं घर में भी जून डालिया झगड़ो खाना ना है, दियो। खिचड़ी खानी है, बस। सही वो मिसाल बस आप क्या खाता है ये बताइए। वो पेट में हाथ नहीं। आपस में बैठते हैं ना तो सब अभी क्या मीठे मीठे बन के बैठे, घर में जो पोजीशन होती होगी। घर वाले दे दे बिस्मिल्लाह, उस पर ही गुजारा करना चाहिए। बापू क्या बर्बाद है? जी यही बातचीत चल रही थी कि भाई मैं खाने पीने से मुतालिक सवाल करूंगा, मैं जो है ये इस तरह का सवाल होगा। अब वही सवालात आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़े एक अच्छे अंदाज से जो सवालात का भी सिलसिला जारी है।